Hello everyone, welcome back to our channel after a so long time. So in this video we are not going to cover physics or chemistry, but in this video I am going to teach you about basic trigonometry. Now why do we study basic trigonometry? Because in the upcoming chapter there is the use of sine, cos, tan, etc. values, and already you know that we were calculating the slope by using the formula tan theta. That tan theta is also related to trigonometry, and that is called trigonometric ratio, and it is one of the trigonometric ratios. So trigonometry is very important because in the chapter work energy power there are certain relation related to angle sine theta, cos theta. There are some there is a formula that is Fs cos theta, force into displacement cos theta. So that cos theta is the angle, so that angle is calculated by the help of trigonometry. So the trigonometry gives us the value of the particular angles. So what we are going to study in trigonometry in this video, the first thing about trigonometric ratios and trigonometric value of specific angles, okay. Next, one complementary angle relation, and then some identities, okay. And at last we are going to see some questions. I will give you questions which you have to solve. Now we are going to start with what is trigonometry. So what is trigonometry? Trigonometry, the branch of mathematics that deals with the study of acute angles and ratio of sides of right angled triangle. So the branch of mathematics, it's what? The branch of mathematics deals with the study of acute angles and ratio of sides of right angled triangle. So एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जहां पे हम लोग एक्यूट एंगल्स और साइड्स के रेशियो, किस साइड के रेशियो, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियोज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ, एंड नोट दैट trigonometry is only valid when the triangle given to you is a right angle triangle. Without right angle triangle, trigonometry is invalid. It cannot be explained on any triangle. It is only for right angle triangle. Remember that. So the branch of mathematics that deal with the study of acute angle. What is acute angle? Angle having starting from 0 degree and less than more than 0 degree and less than 90 degree. That is called acute angle. And ratio of side. What is ratio? AB upon BC, BC upon CA. These all are what? Ratios. So we are going to start with trigonometric ratios. Now a genuine questions can be come to your mind is कि trigonometry क्यों पढ़ते हैं? Why do we study trigonometry? What is the use of trigonometry? Okay, just that. So the main funda behind studying trigonometry is that it helps you to measure the height. It helps you to measure the height of towers, building, etc. How you can find is, this is very interesting. See, you are standing on ground. There is a 100-meter tall building, not 100. You don't know that is 100-meter tall. You want to know that what is the height of that one. So what you will do one thing. If you know the angle between your from the ground level to that to the topmost point of the building, you will be able to calculate the height. How you will be able to calculate? You will learn after this video, very for sure. Now
This is trigonometry. We are going to starting with trigonometric ratios. Now from here your concentration should be on the board, because trigonometry, many of us fear of trigonometry because it's very conceptual. It's not tough. I am telling you, that is not tough. That is actually very conceptual. Now trigonometric ratios. This is T ratios. I am writing T ratios. Why? T for trigonometric ratios. So don't misunderstand it. So this is trigonometric ratio. So there are 6 trigonometric ratios. 6 trigonometric ratios होते हैं हमारे पास. कौन कौन से? हमारे पास होता है साइन, कोसाइन, tangent और cosecant and secant and cotangent. और इसी साइन को हम लोग बोलते हैं साइन शॉर्ट फॉर्म में, इसी कोसाइन को हम लोग बोलते हैं कॉस, और इसी टेंजेंट को हम बोलते हैं टैन, और इसी कोसेकेंट को बोलते हैं कोसेक, और यही जो सीकेंट है इसको बोलते हैं सेक, और ये जो कोटेंजेंट है इसको हम बोलते हैं कॉट. तो ये क्या है? उसके शॉर्ट फॉर्म है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कोसेक, कॉट, इस तरीके से बोल सकते हैं. पूरा नाम बोलने का जरूरत नहीं है. साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट. ओके, दीज आर व्हाट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. उससे पहले इन सबको डिफाइन करने के लिए हमारे दिमाग में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस, ये 3 चीज क्लियर होना चाहिए. तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं. ये हुआ ए बी सी. ओके, ये हो गया हमारे पास एंगल. समझ आया? तो ये एंगल हमारा समझते हैं 90 डिग्री है. अब ये एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है कि 90 के सामने वाला साइड, ये वाला, ये होगा हाइपोटेनियस. ठीक है. और एक चीज बहुत ध्यान से हमें सुनना है. परपेंडिकुलर वेरीज विथ एंगल. राइट इट डाउन. परपेंडिकुलर इन right angle triangle varies with एंगल के साथ वैरी करता है. कैसे? जब एंगल ए पूछेंगे हम, बताओ कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा. एंगल ए के सामने वाला साइड, ये BC होगा हमारे लिए परपेंडिकुलर. और अगर हम सी से पूछे, बताओ कि सी जो है हमारा, सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, तो सी पे यहाँ पे ये हमारा एंगल हो गया. सी के सामने बी, ए बी, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. ठीक है. यहाँ पे हम लोग ए को कंसिडर कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर हमारा ए और सी के लिए अलग अलग होगा. और जो रिमेनिंग सेगमेंट बच जाएगा आपके पास, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस तो आपको गिवन ही होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर आप देख लेंगे कि अगर ये एंगल है तो उसके सामने वाला साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होगा. और बेस को कैसे डिफाइन करेंगे? जो बच जाएगा सेगमेंट, अगर ये बच गया तो इसको क्या बोल देंगे? ये इस एंगल ए के लिए ये बेस हो गया. और एक बहुत ही मस्त सा रिलेशन है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से पता भी होगा, दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम. ये हमें बहुत पुराना थ्योरम है, पाइथागोरस ने दिया था. h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दैट इज टू से दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इज equal to the sum of perpendicular plus base square. Okay, so this is the important relation. You should note it down, or if you don't want it to note it down, I will provide a link of notes what I am teaching right now. Okay, एक notes आपको नीचे हम लोग reveal कर देंगे, वहां से आप उस सारी चीज को नोट कर सकते हैं. There are 6 trigonometric ratios. अब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अभी हम लोग डिफाइन करते हैं. एक ट्रायंगल छोटा सा साइड में बनाएंगे और बारी बारी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अच्छे से समझ लेंगे. तो एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले. ये रहा
एक ट्रायंगल, ठीक है, ये हुआ हमारे पास ए, हम ए वाले एंगल को कंसीडर करते हैं, बी, ये हो गया सी। साइन को कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहली चीज, साइन को डिफाइन कैसे करते हैं? तो साइन इज डिफाइंड एज, अगर ये एंगल ए है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंगल बी के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस और ये वाला साइड बेस। तो साइन को हमने डिफाइन किया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, याद रखना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, AC अपॉन BP, इसको लिख लो AC नहीं BC अपॉन AC, ठीक है। इस तरीके से हमने साइन को डिफाइन किया। कोसाइन को हमने कैसे डिफाइन किया? कोसाइन को हमने डिफाइन किया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या है? ये रहा हमारा, इसको हम लोग थोड़ा सा घेर देते हैं, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको हमने डिफाइन किया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास बेस AB, हाइपोटेन्यूज हमारे पास AB अपॉन AC। टैंजेंट को हमने डिफाइन किया साइन अपॉन कॉस। देखो इसको तो हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू व्हाट, ये ज्यादा बड़ा हो जा रहा है थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, छोटा छोटा लिखना है ताकि सारे के सारे अट जाएं इसमें। सो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टैंजेंट को डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहां से आया? ये एक्चुअली जो टैंजेंट है, टैंजेंट इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कोसाइन। साइन और कॉस का ये एक रेशियो है। कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारे पास कोसाइन की वैल्यू। अब एक बात बताओ, यहां से सॉरी यहाँ पे तो हाइपोटेनियस होगा, सॉरी, तो यहाँ से हाइपोटेनियस कैंसिल, ये b ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, ये रेशियो होता है साइन और कॉस का, ठीक है। ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। ये एंगल को थीटा बोलते हैं, ठीक है। थीटा ऐसा जरूरी नहीं है इस एंगल को थीटा ही बोलते हैं, इसको A B C कुछ भी बोल दीजिए, वैसे जनरली इसका जो डिनोशन होता है वो हम थीटा से देते हैं। कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा इज डिफाइंड एज 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी साइन थीटा का उल्टा। कोसेकेंट थीटा क्या है? ये इसका उल्टा है, दैट इज बेस अपॉन व्हाट, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई थी। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पे है था हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरीके से सीकेंट जो होता है हमारा, वो होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड क्या है हमारा? 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा का उल्टा कौन सा होगा? कॉस थीटा अगर ये है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सीकेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस का उल्टा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोटैंजेंट किसका उल्टा? टैंजेंट का उल्टा, यानी कि 1 अपॉन टैन थीटा, यानी कि टैन इसका उल्टा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारी चीजें हमें जनरली बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट किसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर अच्छा नहीं लग रहा हो देखने में तो नीचे लिंक पे जाके क्लिक करिए, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, ओके। तो अभी एक आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। आपने मोशन में हम लोगों ने देखा था, दैट इज ग्राफ को हम लोगों ने देखा। तो जरा सा ग्राफ के बारे में यहाँ पे एक बार मैं चीज बता दूं कि वाई स्लोप इज डिफाइंड एज tan थीटा। स्लोप को tan थीटा क्यों डिफाइन करते हैं? तो ये होगा हमारा, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। अब हम क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि यहाँ से हम जाते थे, हम लोग बोलते थे चलो यहाँ से कोई लाइन है वो ऐसे गया, यहाँ पे उसने एंगल थीटा अगर बनाया, सो स्लोप इज डिफाइंड एज tan थीटा।
क्यों tan थीटा क्यों? Why it is tan थीटा? Why it is tan थीटा? और ये हमारा y था और ये हमारा x था, ये हमें पता था। और स्लोप का जो फॉर्मूला था, जैसे इधर हमारा क्या होता था, इधर हमारा होता था डिस्टेंस और इधर होता था टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें स्पीड मिलता था। उसी तरीके से हम लोगों ने स्लोप को क्या डिफाइन किया था, y अपॉन x, मतलब y एक्सिस में जो क्वांटिटी होगी डिवाइडेड बाय द x एक्सिस में जो क्वांटिटी होगा, दैट विल गिव अस द स्लोप। और स्लोप का वहीं से हमने फॉर्मूला निकाला tan थीटा। tan थीटा कहां से आया उसको समझते हैं जरा सा। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी होगा, अब यहाँ पे जब क्वांटिटी बढ़ा तब यहाँ पे एक क्वांटिटी आया, और अगर जब हम इसको यहाँ से मिलाते हैं, अब देखो यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा, अब इसे मिला लो, इसे मिला लो, थीटा, थीटा के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाला साइड, अभी बताया व्हाट इज दैट, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से लगी हुई साइड हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया, बेस। यही तो होता है y अपॉन x। ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है, ये y एक्सिस की क्वांटिटी है, बेस क्या है, ये x एक्सिस की क्वांटिटी है, y अपॉन x गिव्स यू द स्लोप। इन द सेम वे परपेंडिकुलर जो होता है हमारा वो y एक्सिस की क्वांटिटी होती है, बेस जो होता है हमारा वो x एक्सिस का क्वांटिटी होता है, तो y एक्सिस का क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द x एक्सिस का क्वांटिटी गिव अस द स्लोप। और यहां से क्योंकि tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसीलिए हमने डिफाइन किया था कि y अपॉन x इज स्लोप, और y का जो y पे जो है वो परपेंडिकुलर है, ये हमने ड्रॉ किया हो क्या है, y पे परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हमारा बेस है, बेस। ठीक है, तो थीटा इज tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, y, और बेस कौन सा होगा, x, तो y अपॉन x। इस तरीके से हम लोगों ने इसे डिफाइन किया। होप करता हूँ आपको ये इंटरेस्टिंग चीज समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इसका ही यूज हम लोग करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सो व्हाट आर स्पेसिफिक एंगल्स, तो स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से होते हैं वो एक बार हमें जान लेनी चाहिए, जनरल सी चीज है स्पेसिफिक एंगल्स। तो स्पेसिफिक एंगल्स में कुछ एंगल्स आते हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड एट लास्ट 90 डिग्री। ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे एंगल्स है, बहुत सारे एंगल्स का हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बहुत सारे एंगल्स आते हैं, 37, 45 भी, ये सारे भी हमारे फिजिक्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ। ठीक है, लेकिन उसको उतना जानने की जरूरत नहीं है, 10 तक भी हम लोग यही सारी चीजें पढ़ते हैं, तो वही चीज आपको हम लोग यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद 0 डिग्री का स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार सब बहुत सिंपल रखना है मुझे, तो मैं डेरिवेशंस पे नहीं जा रहा हूँ कि 0 डिग्री की वैल्यू जो हुई वो इतनी कैसे हो गया, 90 cos 45 की वैल्यू 1/√2 कैसे हो गया, तो ये अभी हम लोग नहीं देखने वाले क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा और वो हमको समझाना पड़ेगा। तो आप जब 10th में पहुंचोगे तो आपको ये सारी चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सिंपली यहाँ पे हम लोग बस एंगल्स के वैल्यू को जान लेते हैं। तो इधर हम क्या करते हैं, हम लोग इधर लिख देते हैं एंगल ए हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू, बस इससे ज्यादा नहीं। ओके, एक मिनट, अब जब 3 बता दिया तो 3 क्यों छोड़े हम लोग, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सबकी वैल्यू लिखते चलेगा। अब अगर एंगल 0 डिग्री हुआ, एंगल अगर 0 डिग्री हुआ तो साइन की वैल्यू कितनी होगी, कॉस की वैल्यू कितनी होगी, टैन की वैल्यू कितनी होगी, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1/2। अब यहां से टैन की वैल्यू तुम खुद निकाल सकते हो, कैसे, साइन और कॉस, तो साइन अपॉन कॉस हुआ, 0 upon anything is not defined. We all know that 0 upon anything is 0. 0 upon anything, ये क्या हो गया,
ये हो जाएगा 0/1/2, तो ये ऊपर आ जाएगा, होगा ना 0/1/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो कैसे भी 0 ही रहना है, तो ये tan थीटा भी 0। समझ में आया? अब अगर साइन अगर 0 है, साइन 0 डिग्री अगर 0 है तो कोसेक कितना होगा? अगर नहीं समझ में आ रहा है ना ये, अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बस यहाँ पे हम लोग को बस वैल्यू याद करते चलना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब बताओ 0 के नीचे क्या होता है? 0 एक रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मैथ्स वाली क्लास में आपको जो पढ़ा रहे होंगे उन्होंने आपको बताया होगा कि ये 0/1 होता है, तो ये p/q के फॉर्म में होता है। लेकिन जब 1 ऊपर जाता है 0 के ऊपर, 1/0 इज टोल्ड एज नॉट डिफाइंड, और इसको हम लोग इनफाइनाइट भी बोल देते हैं, बिकॉज मैथ्स में अगर हमें कोई भी चीज नहीं पता है तो हम लोग उसको इनफाइनाइट भी बोल देते हैं। तो कोसेकेंट थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट इज दी इसकी वैल्यू, ठीक है। कोई एक ही लिखो, इनफाइनाइट ही लिख दो, ठीक है। और अब सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी? कॉस का उल्टा यानी कि 2। tan की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू कितना होगा? अगर इसका वैल्यू tan की वैल्यू 0, तो tan 0 का उल्टा क्या होता है? 0 का उल्टा कुछ करोगे क्या? 0 का उल्टा करोगे क्या कुछ? 1/0 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हम लोग ने डिफाइन कर दिया 0 डिग्री को। अब अगर एंगल यहाँ पे थीटा लिख लो, यहाँ पे थीटा कर लेते हैं, थीटा अब सही है। तो यहाँ पे sin 30, अब sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 हाफ। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 1/√3। कोसेकेंट का वैल्यू 2, सेक की वैल्यू 2/√3, ठीक है। कॉट की वैल्यू tan का उल्टा यानी कि √3। तो ये भी वैल्यू को हम लोग नोट कर लेंगे, नहीं तो फिर जाके आगे कुछ समझ में नहीं आता। फिर चलो 60, 30, 45 आती है, ओके 45। sin 45 की जो वैल्यू होती है sin 45, सो sin 45 इज 1/√2। cos 45 की वैल्यू 1/√2, और इधर से √2 कैंसिल होकर tan को 1 बना देते हैं। फिर cos का वैल्यू कोसेकेंट का वैल्यू सॉरी, सो ये भी होगा √2, ये भी होगा √2, और ये कितना हो जाएगा? 1 का रेसिप्रोकल करोगे 1 ही होने वाला है। तो 45 हो गया, 60 करते हैं, 60 डिग्री 1/2, और यहाँ पे हो जाता है √3/2, यहाँ पे 1/2, ये हो जाएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे हो जाता है हमारे पास 2, और यहाँ पे हो जाता है √3/1, ये होगा 1/√3, ठीक है। तो इस तरीके से अब आता है लास्ट वाला 90 डिग्री, ठीक है। अभी अगर नोट कर रहे हो नोट करते रहो, बिकॉज यहाँ पे ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 0, और इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, बिकॉज 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट लिख दो या नॉट डिफाइंड लिख दो, बात एक ही होती है। क्योंकि देखो स्टैंडर्ड जो हमें नहीं पता होता है उसको हम एक्चुअली यही बोल देते हैं। 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? cos की वैल्यू 1 का उल्टा 1, sec की वैल्यू 0/1, 1/0, फिर से इसका नॉट डिफाइंड, और cot का मतलब इसका उल्टा 1/0 का उल्टा यानी 1। तो ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। नहीं तो इसके बिना हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ओके। ओ सॉरी, cot tan, ओके 90 डिग्री, tan 90 इज व्हाट? tan 90, sorry, this will be 0, this will be 0, sorry, this will be 0, okay. So these are the some of the specific angles जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये मुझे लगता है ये खत्म हो गया। अब एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन बताते हैं आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है वो भी पहले देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसा दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ठीक है। स्पेसिफिक एंगल्स भी खत्म हो गया। अब
यहाँ पे जो चीज है वो है एक रिलेशन है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मैं फिर से बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है 9th क्लास में, इस पे क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, बस दो ही याद रखो। ऐसे 5-6 होते हैं, जैसे कॉट के लिए भी होता है, टैन के लिए भी होता है, सेक के लिए, कोसेक के लिए, सबके लिए होता है, बट हमें साइन और कॉस का जानना था, हमने जान लिया। अब एक आइडेंटिटी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, शायद इस पे सवाल आ जाए कहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कभी भी किसी भी एंगल के लिए अगर थीटा की वैल्यू 45, 60, 90, 0 जो भी हो, अगर उन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो हमें 1 ही मिलता है। दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, और ये सारी चीजें अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस करके वीडियो को एंड करेंगे ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ जाए हमारी। अब दिस इज अ ट्रायंगल, ये वाला एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, हमें बताना है और हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है 14। टेल अस परपेंडिकुलर कितना होगा इसका, परपेंडिकुलर सेंटीमीटर में इसका कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का थोड़ा सा मतलब हमें दिमाग लगाना है। पहली चीज, एंगल 45 गिवन है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास 14 है, निकालना हमें परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होगा कौन सा, पहले हमें ये जज करना होगा। थीटा के एंगल के सामने वाला साइड ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हमारा रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस? ऐसा कौन सा रिलेशन है जहां पे ये आता है? तो यहाँ पे हम लोग का साइन का फॉर्मूला लगता है। तो साइन 45 इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना बताना है, h की वैल्यू 14। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 14 इधर, ये इधर, ओके वेट, 14 और ये हो जाएगा 14/√2। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू उतनी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें पता है चूंकि नीचे रूट है तो रैशनलाइज कर देते हैं इसको, √2/√2, 14√2/2 आंसर आ गया 7√2। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल होते हैं। अब एक दो सवाल और कर लेते हैं जिसमें हमें एंगल बताना है। ठीक है, हमारे लिए जितना नेसेसरी है इस क्लास में उतना करते हैं, और जो है हमारा 10% 20% हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं। बस यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस चाहिए होती है और कुछ नहीं। अब एक हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये इस तरीके का कुछ है, सेक थीटा की अगर वैल्यू 1/2 है, देन यहां पे कॉस एंड टैन बताओ, कॉस थीटा और टैन थीटा बताओ। तो ये क्वेश्चन है जो कि देखने में थोड़ा टफ लगता है। अभी ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। इस एंगल को हमने बोल दिया, मान के चलो थीटा, थीटा से लगी हुई साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस। ठीक है, सेक थीटा को हमने कैसे डिफाइन किया, 1/cos थीटा। तो सेक थीटा को हमने कैसे डिफाइन किया है, 1/2 यहाँ दिया है। अब याद करो, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस को हमने कैसे डिफाइन किया था, ये सब याद रखना पड़ेगा हमें। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कॉस, तो सेक क्या होगा,
हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब कि हाइपोटेनियस की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू 2, यानी 1 और 2, इन दोनों का रेशियो 1 और 2 है। और अगर इनको रेशियो मान के भी चलते हो तो k और k कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 1 और 2। अब हमें बताना है cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? वी नो दैट sec is रेसिप्रोकल, sec क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ cos। इसलिए अगर 1/2 sec है तो sec का उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें cos मिलेगा। तो sec को उल्टा किया तो हमने क्या मिला? cos की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब tan थीटा, अब tan थीटा को कैसे निकालेंगे? देखो tan थीटा को निकालने का एक तरीका है, tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो। परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस हमारे पास है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू कैसे निकलेगी? बहुत आसान है। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? ये भी बहुत आसान है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा है? बेस। अच्छा, हमें बेस चाहिए ना, ठीक है। तो बेस को कैसे निकालेंगे? तो बेस इज इक्वल टू रूट ओवर, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया था हमने यहाँ पे 1/2 ले लिया वैल्यू। नो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। गड़बड़ हो गया सवाल। देखो सवाल गड़बड़ है बच्चों। देखो यहाँ 2 है, हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये तो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। फिर आई एम रियली सॉरी, क्वेश्चन इनवैलिड है, बिकॉज यहाँ पर sec थीटा की वैल्यू 1/2 है। sec थीटा cos थीटा को हम डिफाइन करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पर जब इसको डिफाइन करें तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जो कि यहाँ पे अगर हम 2 बैठाते हैं तो फिर गलती हो जाएगी यहाँ पे हमसे, ठीक है। तो यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू 1